السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں یا کن چیزوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور آج اس کا سیریل نمبر 66 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گناہ پر ہم یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں گناہ ہیں اس میں کوآپریٹ کرنا منع ہے، جو چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کو کرنا نہیں بلکہ ان کے لیے مدد کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہے، لیکن اس میں سے جو خاص باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ غور سے سنیے۔ مثال کے طور پر اسلام میں سود حرام ہے۔ اب وہ ایک آدمی بینک سے یا کہیں سے کسی سے سود لیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی کیسا ہے کہ آپ دو آدمی ضامن لائیے کہ جو آپ کی ضمانت لیں کہ اگر یہ پیسہ واپس نہیں کریں گے تو ہم واپس کریں گے۔ آپ نے کہا آپ اس کے دوست ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ضمانت لیتے ہیں۔ یہ جو آپ ضمانت لے رہے ہیں نا، قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی پر، غلطی کام پر آپ کوآپریٹ نہیں کریں۔ آپ یہ جو ضمانت لے رہے ہیں یہ ضمانت لینا ناجائز ہے۔ دوسری مثال کے طور پر قتل اسلام میں حرام ہے، قتل کا کرنا حرام ہے، اور اسلام میں تو بہت زیادہ اس کی شدت سے ممانعت کی گئی ہے کہ جس نے ایک آدمی کا بھی قتل کیا، اللہ کہتا ہے قتل الناس جميعا، اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ اب ایک آدمی قتل کی پلاننگ، قتل کرنے والا ایک ہے لیکن اس کی پلاننگ میں ایک دوسرا آدمی شامل ہے، تو پلاننگ میں شامل ہونا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ غلطی پر کسی کی مدد کرنا، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ساری مثالیں، یہ اتنی ہی نہیں ہے، یہ آپ کو مثالیں دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ خود اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ابارشن، اسقاط کرانا، بچہ گروانا، یہ حرام ہے اسلام میں، بچہ گروانا حرام ہے۔ اب ڈاکٹر لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے ابارشن کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے ٹیبلٹ دیتے ہیں، یا وہ کمپنیاں جو ٹیبلٹ بنا رہی ہیں۔ اب ٹیبلٹ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ٹیبلٹ بنانے کی خیر کمپنی کو تو کہہ سکتے چلو ہو سکتا ہے کسی وقت ضرورت پڑ جائے، لیکن بے مطلب یہ ڈاکٹر لوگ جو مدد کر رہے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، یہ ڈاکٹر کا مدد کرنا جو ہے نا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے وکیل لوگ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس نے غلطی نہیں کی ہے، اب ان کے پاس مقدمہ آتا ہے تو وہ اپنے موکل کو، جس کا مقدمہ ہوتا ہے، کلائنٹ جسے کہتے ہیں آپ، اس کلائنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کر دیں، آپ ایسا کر دیں۔ یہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے کسی کے حق کو مارنے کے لیے یا کسی کو ستانے کے لیے، تو یہ جو خود ستائے گا تو وہ آدمی، لیکن مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اس میں یہ دھارائیں لگا دی جائیں، اس میں یہ آرٹیکل لگا دیا جائے، یہ دھارا لگا دی جائے گی تو زیادہ پریشان ہوگا۔ اگر وہ غلط چیزیں ہیں تو ایسی شکل میں ایک صحیح چیز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر غلط چیز ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ وکیلوں کا مشورہ دینا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح ملک ہے، ملک کے قانون کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کے خلاف کروانے کے لیے ترتیبیں اختیار کرنا، مشورے دینا۔ مثال کے طور پر الیکٹرک کا بل ہے، اب الیکٹرک کا بل میٹر کے لحاظ سے آتا ہے، آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس میں ایسا کر دیں تو یہ میٹر نہیں چلے گا، یا میٹر والا خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اگر اس کو ایسا کر دیا جائے گا تو آپ کا بل بہت کم آئے گا۔ غلط کام تو وہ کر رہا ہے جو میٹر کو کم کروا رہا ہے، لیکن غلط کام کا جو مشورہ اور آئیڈیا دے رہا ہے، یہ آئیڈیا دینے والے کو بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے طلاق اسلام میں ہے، اسلام میں طلاق جو ہے وہ منع ہے، حرام ہے، بے مطلب طلاق دینا ناجائز ہے۔ اب اللہ حرام تو نہیں کہیے، اب وضع الحلال کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اب بسا اوقات گھر میں بہو سے نہیں بن رہی ہے تو ماں جو ہے وہ بچے کو اس طریقے سے پڑھاتی ہیں، اپنے لڑکے کو اس طریقے سے پڑھاتی ہیں کہ بچہ طلاق دے دے،
या ये कि मिसाल के तौर पर किसी बुनियाद पर बहू से नहीं बन रही है तो बच्चे को ऐसी तरकीब अख्तियार कराते हैं कि बच्चा इसको छोड़ दे। ये जो तलाक दिलवाया जा रहा है ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो मदद कर रही है, तलाक तो देने का काम लड़का करेगा, लेकिन उसमें जो कॉपरेशन कर रही है वो मां कर रही है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर इस्लाम में गैर महरम से दोस्ती करना, गैर महरम से जो है वो जैसे मतलब जिसको आप लाइन मारना कहते हैं, कह लीजिए गैर महरम से लाइन मारना, गैर महरम से ताल्लुक जोड़ना और गंदे ताल्लुक पैदा करना। अब उसके लिए जो है ना वो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं कि ठीक है यार मैं उस लड़की के का एड्रेस ला दूंगा तुमको, मैं जो है ना उसका फोन नंबर तुमको ला दूंगा। ये जो किया जा रहा है वो साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं है, दोस्ती करने वाला दूसरा है, नाजायज ताल्लुकात पैदा करने वाला दूसरा है, लेकिन ये बीच में पढ़ करके क्या कर रहे हैं, ये बीच में पढ़ करके उसका कॉपरेशन ये कर रहे हैं कि उसको जोड़ने, दोनों के नाजायज ताल्लुकात को जोड़ने में मदद करें। ये बात तो अल्लाह कह रहा है ना कि वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि बुराई पर और गुनाह पर जो है वो एक दूसरे की लोग मदद न करें। इसी तरीके से जैसे एक आदमी, एक औरत जो है शादीशुदा आदमी पर डोरा डालती है। अब शादीशुदा आदमी पर डोरा डालती है, डोरा डालने के बाद शादी करती है। अब शादी करने के बाद शौहर को ऐसी तरकीबें बताती है कि वो अपने शौकन पर जुल्म करवाती है, जुल्म करता है शौहर, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसी ऐसी चालें चलती है कि जिसकी वजह से वो अमूमन पहली बीवी पर क्या होता है, जुल्म होता रहता है। ये जो किया जा रहा है, ये जो लाइन मार कर किया गया वो अपनी जगह गुनाह है, लेकिन उसके बाद जो शादीशुदा होने के बावजूद भी जो पहली बीवी से मुतनफिर किया जा रहा है शौहर को, तो ये जो उसमें कॉपरेशन कर रही है या उसमें जो चालें चल रही है या उसमें राजनीति खेल रही है या उसमें गलत गलत बातें कर रही है, ये सारी चीज हराम है। और ये सारा का गुनाह जो है ना वो दूसरी औरत को होगा जिसने शौहर को गलत वर्गलाया। ये अलग बात है कि शौहर में भी नहीं छूटेंगे गलती के करने से, क्योंकि सबब वाला जो काम करता है वो कभी नहीं छूटता है। सबब पैदा करने वाले लोग, उसके कॉपरेशन करने वाले भी गुनहगार होते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर घर में हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवी है, ये तमाम लोग घर में कोई गलत काम करते हैं। मिसाल के तौर पर गलत कपड़े पहनकर बाजार जा रही हैं, शौहर मियां देख रहे हैं और शौहर मियां कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, भैया देख रहे हैं, भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब्बा को देख रहे हैं, अब्बा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये यहां से इसने ये सारे लोग ने गोया कि उसके गलत कपड़े का अप्रूवल दिया, उसमें ताउन किया। अगर बाप उसी वक्त कह देता कि बेटा ये तुम्हारा कपड़ा पहन के जाने वाला है, अगर शौहर अपनी बीवी को मना कर देता कि ये तुम साड़ी पहन के जा रही हो, जो ब्लाउज पहने हुए जिससे सारा पेट नजर आ रहा है, ये अगर वो बोल देता तो हो सकता है कि वो ब्लाउज को तब्दील करती या ब्लाउज पहनना छोड़ती या कुछ भी करती। लेकिन ये सारा का सारा अप्रूवल कौन दे रहा है? भैया दे रहे हैं, अब्बा दे रहे हैं, शौहर में दे रहे हैं, लिहाजा इन लोगों को भी गुनाह मिलेगा। बात अभी से तो यही तो मालूम होता है कि जब घर में जो है वो गुनाह ऐसे होते हैं तो उसमें जिम्मेदार जो होता है वो भी गुनाह में शामिल होता है। लिहाजा ये जो हो रहा है ये भी गोया कि हमारी तरफ से एक ताउन है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर बार्बर की दुकान है, हज्जाम की दुकान है, बाल बनाने वाले की दुकान है। अब एक आदमी जो है वो आता है, कहता है मेरे मुसलमान आता है, कहता है कि मेरी दाढ़ी जो है वो बना दीजिए, यानी शेव कर दीजिए। अब वो बार्बर जो है वो शेव करता है, तो दाढ़ी मुंडाने का गुनाह हराम है, अपनी जगह है, लेकिन जो दाढ़ी मूंड रहा है वो भी उसके साथ ताउन कर रहा है। मैंने देखा है बात जगह, कम जगह देखा है, एक दो जगह देखा है कि बाकायदा बार्बर ने नोटिस बोर्ड लगा रखा है कि मैं मुसलमान की दाढ़ी शेव नहीं करता, लिहाजा हमारे यहाँ कोई ऐसा कस्टमर ना आवे जो मुसलमान हो और अपनी दाढ़ी को शेव कराना चाहता है। लोग समझते हैं हम अगर ऐसा कर देंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि शरीयत की बात पर अमल करने से उसमें कितनी बरकत और कितनी दुकान चलती है। मैंने तो दो जगह देखा है ऐसा फतवा लगा हुआ देखा, दारुल देवबंद में एक जगह देखा कि बाकायदा फतवा लगा हुआ है, दारुल का फतवा लगा रखा है उस बार्बर हज्जाम ने अपनी दुकान के सामने कि साहब यहाँ पर हम दाढ़ी नहीं बनाते हैं, शेव नहीं करते हैं। लिहाजा ये जो किया जा रहा है ये भी गोया क्या है कि गुनाह पर मदद करना है। इसी तरह की जो ब्यूटी पार्लर वगैरह की जो दुकानें खोली जाती हैं खासकर औरतों के लिए, अब उसमें तो औरतों के लिए जो खोल दिए जाते हैं तो बहुत कुछ होता है, मुझे तो पूरी बात मालूम भी नहीं है कि उसमें क्या क्या होता है। लेकिन अगर उसमें जैसे मिसाल के तौर पर भाव बनाने की बात है, भाव बनाना जो है वो इस्लाम में हराम है, मना है, लानत की गई है। अब एक औरत जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो किसी औरत की भाव बनाती है, जो बनवाने वाली है उसके ऊपर लानत है, लेकिन जो बना रही है वो भी गुनाह में शरीक है।
या इसी तरीके से ब्यूटी पार्लर के कोई आइटम ऐसे हो कि जिसमें औरत को सतर दिखलाना पड़े, अपना सतर, उसका जो सतर है औरत के लिए, औरत का सतर दो राय है। एक राय ये है कि घुटने से लेकर के नाक से लेकर घुटने तक है, और दूसरा ये है कि सीने से लेकर घुटने तक है। अब इस जगह को कोई भी औरत किसी औरत के सामने बगैर किसी उद्र के, यानी कोई डॉक्टरी उद्र नहीं है, कोई उद्र नहीं है, महज अपने शौक के लिए, महज अपनी ब्यूटी बनाने के लिए अगर औरत किसी औरत के सामने इन चीजों को खोलती है तो गुनहगार है। खोलने वाली गुनहगार अपनी जगह है, लेकिन जिनके सामने खोला जा रहा है ताकि वो उसके साथ वो ब्यूटी पार्लर वाली औरत कुछ मेकअप करे, क्या करे, जो भी करे, बहरहाल वो क्या है, ये भी गुनाह में शरीक होने के बराबर है। इसी तरीके से शादी ब्याह में बहुत सी चीजें गलत रस्में होती हैं। तो शादी का जो घर का मालिक होता है वो एक एक डिपार्टमेंट एक आदमी को सौंप देता है कि भाई आप खाने का इंतजाम कीजिए, एक साहब आप गोश्त का इंतजाम कीजिए। उसमें एक साहब ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि म्यूजिक वाला और वीडियो वाला जो है ना वो मैं ले आऊंगा, आप उसकी फिक्र नहीं करें, वो मैं सेट कर दूंगा, और वो इंशाल्लाह वो करके उसको समझाते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, इंशाल्लाह कहकर के समझाते हैं कि वो इंशाल्लाह मेरे जिम्मे है, आप घबराए नहीं, मैं वो काम कर लूंगा। वो जो काम किया जा रहा है चूंकि मना है। अब आप मुसलमान औरतें, हैरत होती है, अभी मैं एक शादी में गया हुआ था, मुसलमान लोग हैं लेकिन मुसलमान लोग हैं और वो जो है निकाह में जब औरत से पूछने जा रहे हैं तो गैर मुस्लिम की वीडियो के साथ जा रहे हैं, गैर मुस्लिम वहां जाएगा और तमाम औरतों की वीडियो बनाएगा। वो साहब जो वीडियो बना रहे हैं अगर वो मुसलमान है तो वो हराम कर रहे हैं, जो औरतें वहां खड़े होकर के वीडियो बनवा रही हैं वो हराम काम कर रही हैं। लेकिन वो हजरत जिन्होंने ये वीडियो का पूरा प्रोग्राम तय किया है वो तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान की बात में आ गए कि वो अल्लाह ताला कह रहा है कि बुराई पर और गुनाहों पर जो है वो मदद न की जाए, लिहाजा कि उसमें इस बात में भी शामिल है। इसी तरीके से दादागिरी है, मतलब दादागिरी लोग करते हैं, शहर में इस किस्म के लोग बाकायदा मौजूद रहते हैं और वो किसी की जमीन है, किसी की जमीन है, किसी दूसरे की जमीन के नाम उनको करवाना है, करता है दूसरा आदमी अपने नाम, लेकिन वो खड़े होकर के उसमें मदद करते हैं, उनकी दादागिरी है, ज्यादा उनके सामने लोग बोलते नहीं, और बेचारा जिसका हक है उसका हक मारा जाता है और दूसरे के नाम वो जमीन चली जाती है। इन्होंने उसको कॉपरेशन किया है, चाहे उसके लिए पैसा लिया हो, चाहे पैसा न लिया हो, चाहे जिस तरीके से भी मदद की, वो मदद करना क्या है, हराम है। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो लड़कियों को उठवा लेते हैं, लड़कियों को भगवा देते हैं। अब वो लेके जाने वाला तो दूसरा है, वो अपनी जगह गुनाह कर रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसके गुनाह में कोई कमी हो जाती है, वो अपनी जगह गुनाह कर रहा है, लेकिन ये बीच से पढ़ करके उसको कॉपरेट करवाते हैं क्योंकि ये दादागिरी इनकी है, इनकी चलती है, ज्यादा इन्होंने भी ये काम कर दिया। तो इस तरीके से दादा लोग इस कदम का जो है वो नाजायज कब्जा करवाते हैं, नाजायज काम करवाते हैं। इसी तरीके से जैसे होटल है, अब होटल में जो बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, उसमें जो है वो खाने पीने के साथ शराब भी सप्लाई होती है। अब शराब पीने वाला दूसरा है, लेकिन जो बहरा शराब लेकर के जा रहा है और उसके सामने जो शराब रख रहा है ये भी गुनहगार है, क्योंकि शराब के बारे में क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शराब पीना हराम है, शराब बनाना भी हराम है। शराब और शराब के बारे में तो ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई आदमी शराब लेकर के जा रहा है, मोटरसाइकिल से लेकर के जा रहा है, साइकिल से लेकर जा रहा है, और शराब का कार्टन जो है वो गिर जाए, मतलब उससे गिर जाए, और आप वहां पे मौजूद है और आपने देख लिया कि साहब इसमें शराब है, तो ऐसी चक्कर में वो गिरा रहे, आदमी को भले उठा ले, लेकिन शराब आप नहीं उठा सकते हैं कि शराब उठा करके उसकी मदद कर दें, उसके डिग्गी में रखवा दें, उसके कैरियर पे रखवा दें, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शराब के बारे में सब पर लानत की गई है, जैसे सूद के बारे में लानत की गई कि सूद खाने वाला हराम है, सूद देने वाला हराम है, सूद लेने वाला हराम है, सूद का हिसाब करने वाला हराम है, ऐसे शराब के बारे में भी सबको हराम करार दिया गया है। शराब पीना भी हराम है, शराब बनाना भी हराम है, शराब सप्लाई करना भी हराम है, शराब सप्लाई करने में मदद करना भी हराम है, लिहाजा ये सब हराम है। तो इस तरीके से होटल में जब आप काम करते हैं और वहां पर आपको ये है कि साहब आपको मतलब शराब सप्लाई करनी है, लिहाजा आप शराब नहीं सप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मोबाइल की शॉप है, अब लोग मोबाइल की दुकान रखे हुए हैं, लड़के आते हैं उनके पास, कहते हैं कि साहब इसमें वो गंदी गंदी फिल्में हैं, गंदी गंदी क्या कहते हैं तस्वीरें हैं, वो अपने मोबाइल में कहते हैं इसमें डाउनलोड कर दीजिए। जो करवा रहा है वो अपनी जगह में गुनहगार है, लेकिन जो बीच में आप पढ़ करके कॉपरेट कर रहे हैं ये आपका कॉपरेशन भी हराम है। या इसी तरीके से गंदे गाने हैं, उन्होंने कहा आप हमारे गंदे गाने